Everyone, and welcome back to the new video of this channel. So today we will be solving a problem which is build a matrix with conditions. Lead code 2392 problem. So this is the problem. You can read the problem. So I will directly tell you what problem is saying. So we have given some row conditions and column conditions and k. K is basically k cross k matrix that we have to create. We have to create a k cross k matrix, and we have given some row conditions and column conditions. So let's see what row conditions and column conditions are saying. So this is the example one. So I have written here. So these are the row conditions and these are the column conditions. So row condition is basically saying if you have given 1 comma 3, it means 1 should come before 3. If you have given 4 comma 3, it means 4 should come before 3. And if you have given 3 comma 2, it means 3 should come before 2. Let's create a graph for this. So if 1 should come before 3, so it will something like this: 1 then 3. 4 should come before 3, so 4 should come before 3, so it will be something like 4 and 3, uh, because 4 is the children of 3, and 3 should come before 2, so 3 should come before 2, so 3 is coming before 2. So this is a perfect graph for row conditions. That is data matching are row conditions. So these are some column conditions, as same as 1 should come before 2, 4 should come before 2, and 4 should come before 3. So 1 should come before 2. It means 1 will be here and 2 will be here, because 1 should come before 2. Okay. 4 should come before 2. So 4 should come before 2. It will be something like this, and 4 should come before 3, and 4 should come before 3. It will be something like this. So the row is telling like 4 is a children of 3. It means because 4 is coming before 3, so it means 4 is a children of 3. It is saying like this. So these are the row condition graph, and this is a column conditions graph. So the second condition is, you can see this example. So I have written here. So in second example there is a cycle. If cycle is there, what cycle it means? Like you can see this row conditions array: 1 2, then 2 3, then 3 1, then 2 3. So you can see here 1 should come before 2, so 1 should come before 2. 2 should come before 3, 2 should come before 3. Here you can see. And third condition is 3 should come before 1. How is this possible? You can see here 3 should come before 1. Okay, 3 should come before 1, but you can see here 3 is a parent of 1. You told that 1 should come before 2. Okay, 1 is coming before 2, 2 is coming before 3, 2 is coming before 3. Then how it is possible that 3 is coming before 1? So it is not possible. So in that case you can see here there is a cycle. So if cycle is there, then it means that is completely wrong. We can't create anything. We can't create a matrix in that case. So you can see here we can use topo sort to check the condition, because we know the topo sort condition is it is only applicable on directed acyclic graph. You can see here it is a directed graph and it is a cyclic graph, but topo sort is only used on directed acyclic graph. So we can check this condition by using topo sort technique. So in this particular question, we can use Kahn's algorithm. So the Kahn's algorithm is saying like, firstly we have to find the integrity of each element. So integrity basically, if we have created this graph 1 4 3 2 for 1 4 3 2. If we have given this graph, then firstly we have to create a integrity of this graph. So you can see here the integrity of 1 is 0, integrity of 4 is 0. How we are finding this integrity? इंटीग्रिटी बेसिकली उस नोड के पास कितनी नोड्स आ रही हैं, ठीक है। 1 के पास कोई नोड आ नहीं रही है, 1 से नोड जा रही है, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रिटी 0 हुई, अगेन इसकी भी इंटीग्री 0 हुई। 3 की इंटीग्री देखो, 3 की इंटीग्री कितनी हुई? 1 एंड 1, 1 प्लस 1 2, 2 इसकी इंटीग्री होगी। इनिशियली इसको मत देखो, 2 1 में कन्वर्ट हो रहा है, देन 1 0 में, इसको नहीं देखना, ठीक है। देन इंटीग्री ऑफ 2, 2 के पास एक ही नोड आ रही है, तो इंटीग्री ऑफ 2 इज 1। सो दीज आर द इंटीग्री। नाउ यू विल सी कि यार फर्स्ट अब इंटीग्री 0 वालों को उस
इसमें डालेंगे हम, इसमें क्यू का यूज करेंगे बेसिकली बिकॉज इट्स अ Kahn's algorithm. Kahn's algorithm we use Q. I'll tell you in code why we are using a Q here. बट इफ मैं वन को ले रहा हूँ, क्योंकि हम कैसे ले रहे हैं इसमें, जिसकी इंटीग्री जीरो होगी उसको स्टोर कर रहे हैं, उस वाले एलिमेंट को हम स्टोर करेंगे, ठीक है। सो यू कैन सी हियर द इंटीग्री ऑफ वन इज जीरो, सो वी कैन टेक वन नाउ, और क्यू में पुश भी कर देंगे इसको, ठीक है। इंटीग्री ऑफ फोर इज जीरो, देन अगेन we'll put in this, we will store this element बेसिकली। अब जीरो वाले इंटीग्री वाले मैंने स्टोर कर लिया। अब यू कैन सी हियर अगर इंटीग्री ऑफ वन इज जीरो है तो मैंने वन को स्टोर कर लिया, तो इसको वन को हटाना पड़ेगा। वन को अगर मैं हटा रहा हूँ यहाँ से तो थ्री की इंटीग्री में चेंज आएगा, क्योंकि थ्री पे एक नोड कम आ रही है अब, तो टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर अगर मैं फोर को स्टोर कर लिया, फोर की इंटीग्री क्या होगी, अब जीरो थी पहले, अब फोर को स्टोर कर लिया तो ये फोर यहाँ से कट होगी नोड, देन अगेन कट होगी तो वन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो, बिकॉज एक इंटीग्री इसकी भी कम होगी थ्री की, एक ये कम हो गया, एक ये कम हो गया, दोनों कम हो गए, जीरो हो गया, टू माइनस टू जीरो। अब जीरो हो गया तो मेरे को जीरो वाले इंटीग्री वाले को तो स्टोर करना है, तो थ्री को भी स्टोर कर लूंगा। थ्री को स्टोर किया मैंने, ये वाला हटाया एरो, तो इसको हटाया, तो मैंने एक इंटीग्री इसकी कम होगी तो ये वन जीरो में कन्वर्ट हो गया, अगेन इसको मैंने स्टोर कर लिया यहाँ पर, ठीक है। एज सेम एज कॉलम में भी सेम चीज करेंगे कि कॉलम वाला ये रहा मेरे पास ग्राफ, तो इसको मैंने इंटीग्री इनिशियली वन की कितनी थी, जीरो थी, तो वन को स्टोर करा, फोर की भी जीरो थी, फोर को स्टोर करा, वन को मैंने स्टोर कर रखा था, तो इसको मेरे को एरो को हटाना पड़ेगा, एरो को हटा दिया तो टू की डिग्री कम होगी, वन में कन्वर्ट होगी। एज सेम एज फोर को अगर मैंने स्टोर कर लिया तो फोर को इस एरो को हटाना पड़ेगा, इस एरो को हटाया, टू की डिग्री कम होगी, टू की डिग्री कम होगी, तो मेरे को टू ये वन जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली द इंटीग्री ऑफ टू इज जीरो, सो टू को भी स्टोर कर लेंगे, टू को स्टोर कर लिया मैंने। एज सेम एज अगर मैंने फोर को हटाया तो इंटीग्री थ्री की भी कम होनी चाहिए, बिकॉज मैंने फोर की जो भी, फोर से जो भी नोड निकल रही हैं मैंने उन सबको हटा दिया है। सो आई हैव रिमूव्ड ऑल द नोड्स that are कमिंग फ्रॉम द नोड फोर। सो इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। सो आफ्टर रिमूविंग दीज नोड्स द इंटीग्री ऑफ थ्री is also zero. So इसको भी स्टोर कर लेंगे। Now you can see 1432, 1432 is showing like रो वन में क्या आ रहा है, वन आ रहा है, रो टू में फोर, रो थ्री में थ्री, रो फोर में टू। एस एम एस कॉलम में भी 1423, इट इज सेम लाइक दिस। नाउ यू कैन सी if I create a matrix by using this, you can see here 1432, 1432, four rows, you can see फोर रोज 1432 और फोर कॉलम 1423, तो 1423 मैंने लिख दिया। अब ये, अब देख सकते हो मैपिंग देखो, वन अगर मैं वन का यूज करता हूँ तो वन और वन, तो वन यहाँ पे आना चाहिए फर्स्ट रो में, बिकॉज वन तो रो वन में आना चाहिए और रो वन में ही आ रहा है, और कॉलम में भी वन आना चाहिए तो यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। अब इसकी मैपिंग देखो, रो टू में क्या आना चाहिए, फोर आना चाहिए, और फोर की मैपिंग देखेंगे किस कॉलम में, इसमें, तो इसमें फोर लिख दिया। थ्री में कहाँ पे आना चाहिए, रो थ्री में आना चाहिए, और थ्री की मैपिंग किससे हो रही है, इस कॉलम से हो रही है, तो यहाँ पे थ्री लिख दिया, यहाँ पे टू लिख दिया। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन। आई एम नॉट saying like this is only solution, but this is one of the possible solution that are matching our conditions. So this can be our desired answer, because we have to use the conditions for making the matrix, and this matrix is fulfilling all the conditions. So this is the desired answer. So now let's directly go on the coding part. So before going coding, let's directly talk about space and time complexity for this. So you can see here only we are using a space complexity is big of k into big of k, like it is a big of k square. Space complexity is big of k square, and time complexity is also big of k square. For the solution I will tell you after the code also. So now let's directly go on the coding part. So coding is very simple. Firstly what I will do is, basically I have to create a order, because I have to create this thing 1432 and 1423. So for that I will use Kahn's algorithm. So for Kahn's algorithm I have to create a vector int which name is row order, and एक फंक्शन बना दूंगा जो कांस नाम का होगा, कान नाम का होगा, उसमें मैं क्या पास करूंगा, के को पास करने की कोई जरूरत नहीं है कि बिकॉज वी नो दैट के इज अ, चलो के को पास कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं एक कंडीशंस पास करूंगा,
ठीक है, जो रो कंडीशन और दो कॉलम कंडीशन दोनों के लिए यूज हो जाएगा, ठीक है, और के को भी पास कर दूंगा। एंड एज सेम एज एक कॉलम कंडीशन ही बना लेंगे। अरे यार क्या कर दिया, ठीक है, एज सेम एज एक कॉलम के लिए भी बना लेंगे। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे एक कॉलम ऑर्डर के नाम से भी बना लिया, ठीक है, कॉलर ऑर्डर के नाम से बना लिया। नाउ लेट्स क्रिएट अ फंक्शन फॉर दिस। सो फंक्शन इज वेरी सिंपल, कांच एल्गोरिथम है, और इसमें हम वेक्टर का यूज करेंगे बिकॉज ये वेक्टर रिटर्न करेगा मेरे को, इसलिए तो मैंने रो ऑर्डर वेक्टर टाइप का बनाया, ठीक है। कान, इसमें मैं क्या पास करूंगा, फर्स्टली मेरे को पास करना पड़ेगा मेरा कंडीशन। सो कंडीशंस, यार स्पेलिंग भी गलत लिख रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को के को पास करना पड़ेगा, ठीक है, मैंने पास कर दिया। अब मेरे को फर्स्ट सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मेरे को एक ग्राफ क्रिएट करना पड़ेगा लाइक दिस, you can see this graph. Firstly, I have to create this graph and this in degree array। यार इसको पता कैसे लगेगा, 1 की डिग्री 0, 4 की डिग्री 0 है। सो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। सो ग्राफ को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मेरे को एक वेक्टर बनाना पड़ेगा, वेक्टर इंट ग्राफ। इसका साइज क्या होना चाहिए, k+1 साइज रख देते, ठीक है, और इसको ऐसा करते हैं फिर k+1 से मार्क कर देते हैं, ठीक है। इनिशियली हम k+1 दे रहे हैं बिकॉज के 1 से स्टार्ट होना चाहिए ना, इसलिए, ठीक है, k+1 से स्टार्ट कर दिया। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि ग्राफ मैंने क्रिएट कर दिया है, अब मेरे को एक इन डिग्री भी क्रिएट कर देनी पड़ेगी। सो वेक्टर इंट इन डिग्री, ठीक है, मैं इन डी आई एन डी से ही लिख रहा हूँ क्योंकि चलो इन डिग्री लिख ही देते हैं, इन डिग्री, ठीक है। इन डिग्री में मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, इसको इन डिग्री में k+1 साइज का रख रहा हूँ और सबको पहले इनिशियली सबको 0 से मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को कांच एल्गोरिथम है, मैंने बोला था क्यू का यूज करेंगे, अब मैं कोड में बताऊंगा क्यों क्यू का यूज करेंगे, ठीक है। क्यू में मैंने एक क्यू बना ली सबसे पहले, ठीक है, और एक वेक्टर इंट आंसर भी बना लेते हैं, आंसर भी मेरे को जो स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर मैंने बना लिया, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक अपन लूप का यूज करते हैं, ठीक है, फॉर ऑटो, और ऑटो का यूज ना करके एक ऐसे लिखते हैं वेक्टर इंट कंडीशन बिलोंग्स टू कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस, ठीक है, मैंने कंडीशंस को एक बार चेक कर रहा हूँ, ठीक है, कंडीशन नाम के एक वेक्टर को चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि यार मेरे को पता है कि यार नोड कैसे बनेगी, मेरे को ये दिया हुआ है रो कंडीशंस में। सो 1 से 3 के लिए एक नोड है, देन 4 से 3 के लिए नोड है, एंड 3 से 2 के लिए नोड है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे को पता है ग्राफ ऑफ कंडीशन ऑफ जीरो। सो कंडीशन ऑफ जीरो डॉट पुश बैक ऑफ कंडीशन ऑफ 1, कंडीशन ऑफ 1, ठीक है। मैंने क्या किया कि एक नोड बना दी, जैसे 1 से 3 के, ये देख सकते हो आप, मैंने नोड कैसे बना दी, 1 से 2 के बीच में नोड बना दी, देन 3 से 2 के बीच में नोड बना दी। इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, इस एग्जाम्पल को देखें तो 1 से 2 के बीच में नोड बना दी, 2 से 3 के बीच में नोड बना दी, और मैं साथ की साथ क्या कर रहा हूँ कि इन डिग्री को भी बढ़ाता जा रहा हूँ। तो डिग्री, सॉरी इन डिग्री ऑफ कंडीशन ऑफ आई, और आई क्या बोल सकते हैं इसको, मैंने 1 की इन डिग्री को बढ़ाना पड़ेगा ना, बिकॉज इसमें मैंने किया क्या है, लाइक यू कैन सी है 1 से 3, 4 से 3, 3 से 2। सो लिख देता हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 से 3 के बीच में एक नोड बनाई, देन 3 से 2 के बीच में नोड बनाई, एंड क्या है यहाँ पे 4 से 3 के बीच में नोड बनाई, 4 से 3 के बीच में नोड बनाई। सो लिख देते हैं 4 से 3 के बीच में एक नोड बनाई। इट मीन्स अगर मैं 1 से 3 के बीच में नोड बना रहा हूँ तो मेरे को इन डिग्री 3 की बढ़ानी पड़ेगी। सो इट मीन्स मेरे को कंडीशन ऑफ 1 की इन डिग्री बढ़ानी पड़ेगी, कंडीशन ऑफ 0 इज शोइंग 1 एंड कंडीशन ऑफ 1 इज शोइंग 3। सो मेरे को कंडीशन ऑफ 1 की इन डिग्री मैंने बढ़ा दी है। नाउ आई हैव क्रिएटेड अ ग्राफ, और मैंने कंडीशन जो इन डिग्री थी वो बना ली है, ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, अब मैं एक क्या यूज करूंगा, एक लूप का यूज करूंगा, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 से यूज करते हैं, आई लेस देन के एंड आई प्लस 1, आई प्लस प्लस,
एक लूप का यूज किया और मैंने चेक किया इफ इन डिग्री ऑफ आई इक्वल टू जीरो, अगर मेरी इन डिग्री जीरो है तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, क्यू में पुश कर सकता हूँ। सो इन दैट केस आई हैव टू पुश दैट इन क्यू। सो क्यू डॉट पुश ऑफ आई, उस आई एलिमेंट को मैंने क्यू में पुश कर दिया। अब मैं बताता हूँ क्यू क्यों लिया, क्योंकि जिसकी इन डिग्री जीरो है, मैं बोला उसको स्टोर भी करना है, तो उसको स्टोर तो हम कर लेंगे, पर उसको इन डिग्री क्यू में पुश करने से क्या हुआ कि अब मैं क्यू को ट्रेवर्स करूंगा और क्यू में से एलिमेंट को बाहर निकालूंगा और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखूंगा, वो बताता हूँ। इसमें देखते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इफ ये लूप का यूज करके मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि एक वाइल लूप का यूज करता हूँ, while not of q dot empty। I told you why we are using q। अब मैं q का यूज कर रहा हूँ, अब मेरे को फ्रंट नोड पर निकालनी पड़ेगी। इंट फ्रंट नोड इक्वल टू q डॉट फ्रंट। मैंने एक फ्रंट नोड निकाली, फ्रंट वाला एलिमेंट निकाल लिया मैंने, और उसको क्या कर दिया, सबसे एक वेक्टर इंट आंसर भी बना लेते हैं, आंसर में उसको स्टोर भी कर लेंगे। सो वेक्टर इंट आंसर बना लिया, आंसर बनाया मैंने, ठीक है। आंसर मैंने बना चुका हूँ शायद, है हाँ, ऊपर बना चुका हूँ आंसर को, आंसर बना लिया। अब उस जो भी फ्रंट नोड है उसको मैं आंसर में स्टोर कर लूंगा। तो आंसर, सॉरी, आंसर डॉट पुश बैक ऑफ दैट फ्रंट नोड। सो फ्रंट नोड को मैंने आंसर में पुश भी कर लिया और उसको क्यू डॉट पॉप भी कर लिया, ठीक है। अब पॉप कर लिया, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि यार मेरे पास मान लो, अब यू कैन सी हियर मैंने क्या किया, पहले जिसकी इन डिग्री जीरो थी, मतलब वन की इन डिग्री जीरो थी, तो वन की इन डिग्री जीरो थी तो मैंने वन को क्यू में पुश किया। अब मैं क्यू में से बाहर निकाल रहा हूँ वन को, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली क्यू में से बाहर निकाल दिया मैंने वन को। तो चेक किया कि यार वन को आंसर में तो डाल दिया, अब वन को मैंने क्यू में से बाहर निकाल दिया। अब वन के करस्पॉन्डिंग मैं चेक करूंगा कि यार मैंने, अगर मैं वन को बाहर निकाल रहा हूँ तो इन डिग्री इसके में भी फर्क पड़ेगा, थ्री की इन डिग्री में भी फर्क पड़ेगा। तो यही चीज मेरे को चेक करनी है कि यार मैंने क्यू डॉट पॉप तो कर दिया, ठीक है, क्यू डॉट पॉप कर दिया, क्यू में से वो एलिमेंट वन निकाल लिया। अब वन की वाली नोड हटेगी, तो और और नोड्स की इन डिग्री में भी फर्क आएगा जो उससे कनेक्टेड है। तो इसके लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, फोर इंट, उस नेबर पे जा रहा हूँ, NEIGHBOUR, नेबर पे गया, उस नोड की पे, किस नोड की पे, मेरे को जाना है ग्राफ ऑफ दैट फ्रंट नोड, उस पे गया। और मैंने क्या किया कि यार अब मैं चेक करूंगा कि यार मैं ग्राफ ऑफ फ्रंट नोड के नेबर पे चला गया। मेरे को सबसे पहले क्या करना है, इन डिग्री उसकी कम करनी पड़ेगी, तो इन डिग्री ऑफ नेबर माइनस माइनस, ठीक है, इन डिग्री मैंने कम कर दी। अब मैं चेक करूंगा, अगेन मैं चेक करूंगा इफ इन डिग्री ऑफ नेबर, सॉरी यार, GHBOUR, इन डिग्री ऑफ नेबर इक्वल टू जीरो, अगर इन डिग्री उसकी जीरो हो जाती है तो सिंपली मैं उसको पुश कर दूंगा, क्यू डॉट पुश ऑफ नेबर, BOUR। मैंने क्यू को पुश कर दिया, क्यू में पुश कर दिया, अगर मेरी इन डिग्री उसकी जीरो होगी तो मैंने उसको क्यू में पुश कर दिया, क्यू में पुश कर दिया, और फाइनली आफ्टर दिस लूप मैं अपने आंसर को रिटर्न कर सकता हूँ। ये मैंने कांस वाला फंक्शन बना लिया है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, मैंने कितना पार्ट कंप्लीट कर दिया, लगभग सारा पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अब मेरे को क्या करना है, मैंने ये वाली चीज बना ली, ये वाली चीज बना ली। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को ये क्रिएट करना है, इसके लिए मेरे को मैपिंग चाहिए, ठीक है, कि यार ये मैप कैसे हो रखे हैं, ठीक है। अब फंक्शन पे जाते हैं कि यार अपन कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि अपन मैपिंग कर कैसे रहे, वन यहाँ पे है तो उसका कॉलम के करस्पॉन्डिंग मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगेन सेम यही चीज अपन कैसे कर रहे हैं कि फोर यहाँ पे है तो उसका कॉलम के करस्पॉन्डिंग मैपिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, चलो एक क्या मैपिंग करते हैं, तो अनऑर्डर मैप बना लेते हैं। मैप बना लिया इंट कॉमा इंट टाइप का, ठीक है, जिसका नाम रख दिया मैंने MP। MP इज बेसिकली अ मैप। अब मैप तो मैंने बना लिया, अब मेरे को एक कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी यार, एक कंडीशन अपन भूल रहे हैं, ठीक है। मैंने एक साइकिल वाली कंडीशन बताई थी यार, साइकिल तो नहीं है प्रेजेंट। साइकिल को चेक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, रो ऑर्डर इफ रो ऑर्डर डॉट साइज इज लेस देन के, या
कॉलम ऑर्डर सॉरी डॉट साइज इज लेस देन के, अगर ये कोई भी कंडीशन मैच हो जाती है, इस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न नल, क्योंकि वो एक साइकिल है तो उसमें मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है। ये मैंने कंडीशन चेक कर ली है। अब इतनी पार्ट मैंने कर लिया है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए वेक्टर और वेक्टर इंट मैट्रिक्स, और जिसका साइज कैसा होना चाहिए, के क्रॉस के, सो के कॉमा वेक्टर इंट के, और जीरो से मार्क कर देते हैं, ठीक है, इनिशियलाइज कर देते हैं, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक लूप का यूज करूंगा, फोर इंट आई इक्वल्स टू जीरो टू आई लेस देन के एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। मैंने एक मैप का यूज किया, और मैं इसका क्या कर रहा हूँ कि यू कैन सी हियर, यार ये रहा, हाँ। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि यार जो कॉलम वाले हैं ना, उनको उसके इंडेक्स से स्टोर करा दे रहा हूँ, लाइक यू कैन सी वन वन आ रहा है जीरो इंडेक्स पे, फोर आ रहा है वन इंडेक्स पे, टू आ रहा है सेकंड इंडेक्स पे, थ्री आ रहा है थर्ड इंडेक्स पे, अगेन वन आ रहा है जीरो इंडेक्स पे, फोर आ रहा है सेकंड इंडेक्स पे। तो इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग उनको स्टोर कराना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या आ गया फंक्शन, मैं क्या कर सकता हूँ कि मैप ऑफ कॉलम ऑर्डर ऑफ आई, उसको मैं क्या कर देता हूँ, आई के इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। इससे मैंने क्या किया कि जो वन आया उसको जीरो इंडेक्स से कर दिया, टू आया उसको सेकंड, मतलब जो भी एलिमेंट आया मेरे पास, यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या है मेरे पास, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। वन आया जीरो इंडेक्स से, फोर आया फर्स्ट इंडेक्स पे, टू आया सेकंड इंडेक्स पे, थ्री आया थर्ड इंडेक्स पे, जीरो वन टू थ्री। एक्चुअली मैंने पिछली बार गलत बोला था शायद, है ना, वन आया जीरो इंडेक्स पे, फोर आया फर्स्ट इंडेक्स पे, ऐसा, ठीक है। मैंने इंडेक्स से अब ये चीज कर ली है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, आफ्टर दिस लूप मैं एक बार ट्रेवर्स करता हूँ, फोर इंट आई को जीरो टू आई लेस देन के एंड देन आई प्लस प्लस, मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ, और मैं अब एक चीज चेक कर, अब मेरे को बनाना पड़ेगा, तो इंट कॉलम ऑर्डर ऑफ, कॉलम ऑर्डर नहीं, ऐसा करते हैं कॉलम पोजीशन देखते हैं, इंट कॉलम पोजीशन इक्वल्स टू मैप ऑफ रो ऑर्डर ऑफ आई, ठीक है। कॉलम पोजीशन मेरे को मिल गई है, कॉलम पोजीशन मेरे को मिल गई है, तो उसको मैं क्या करूंगा, मैंने जो मैट्रिक्स बनाई थी, मैट्रिक्स ऑफ, मेरे को जो आई ऑफ कॉलम पोजीशन, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ कॉलम पोजीशन को मैं किसके इक्वल कर दूंगा, इक्वल्स टू रो ऑर्डर ऑफ आई, ठीक है। इतना मैं पार्ट रन कर दिया। अब मेरे पास मैट्रिक्स शायद बन के तैयार हो जाएगी, वो रन करके पता चल जाएगा, और ये वेक्टर ऑफ वेक्टर था तो मिल जाएगा। और फाइनली मैं रिटर्न कर दूंगा मैट्रिक्स। अब इसको रन करके देखते हैं एक बार, और चेक करते हैं कि क्या दिक्कत आई है। ये ऑफ कंडीशन ऑफ जीरो और पुश बैक ऑफ कंडीशन ऑफ वन, कौन सी लाइन में है ये देखिए, जी ऑफ कंडीशन ऑफ जीरो the pushback of condition of one, चलो देखो। So the problem was here, the declaration of graph here, yeah, so it's actually 2D graph, so vector of vector int g of size k plus 1, now it should be perfect. Yes, you can see it is working. Now let's submit this. Yeah, you can see here it is working perfect. So this was the code. In this code what we are doing here is we just did a in degree, like we are just creating a graph firstly, and we are finding out the in degree of all the elements, then we are creating a answer vector which stores the values. If the in degree of some node is 0, then we can store that element in my answer vector. You can see here, firstly
we are creating the functions. This is the can function. सो ग्राफ क्रिएट कर रहे हैं, ग्राफ क्रिएट कर से कर रहे हैं, इसमें मैंने ग्राफ क्रिएट कर दिया इसके थ्रू। ठीक है, इसमें मैंने अब क्या किया, जैसे मैं एक एग्जांपल उसके थ्रू ले लेता हूँ, जैसे 134332। तो मैंने जस्ट यही मैंने क्रिएट किया है कि 1 से 3 के लिए एक नोड बना दी, और 1 से 3 के लिए नोड है, तो 3 की इंटीग्री बढ़नी चाहिए, तो इसलिए कंडीशन ऑफ 1 की इंटीग्री मैंने बढ़ाई है। इसी प्रकार मैंने जैसे मान लो 4 से 2 के लिए बढ़ा रहा हूँ, तो 4 से 2 के लिए मैंने ग्राफ बना दिया, ग्राफ बना दिया तो मैंने क्यू में क्यू ही बनाया, और क्यू में जिनकी इंटीग्री 0 थी उसमें पुश कर दिया। अब मैं क्यू को ट्रेवर्स कर रहा हूँ, एलिमेंट निकाल रहा हूँ क्यू में से और उसको आंसर में डाल रहा हूँ, और चेक कर रहा हूँ कि उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। और मैं चेक क्या कर रहा हूँ, चेक नहीं कर रहा मैं, उस जो एलिमेंट मेरा 0 था, जैसे 1 की इंटीग्री 0 थी, तो 1 को मैंने आंसर में पुश कर दिया और क्यू में से पॉप कर दिया, और चेक किया कि 1 के जो नेबर हैं उनको उनकी सारी इंटीग्री 0 कर दो, मतलब 0 क्या 1 से कम कर दो, और चेक करो कि यार अब उनकी डिग्री 0 है क्या नहीं है, 0 है तो फिर से क्यू में पुश कर दो। और इस लॉजिक से मैंने चेक कर दिया, टू चेक द साइकिल, टू check if there is cycle or not। ये अगर वहाँ साइकिल हो या नहीं, मैंने ये चेक कर लिया। तो हाँ ठीक है, टू चेक देयर इज अ साइकिल और नॉट। ठीक है, चेक कर लिया यहाँ से और मैंने यहाँ से क्रिएट कर दिया। सो दिस वाज द सिंपल कोड by using Kahn's algorithm. So the time complexity and space complexity is basically big of k square. You can see here the big space is big of k square, और k plus वन मान लो तो k plus वन का स्क्वायर, वैसे k square approx equal to k square, and the space complex, sorry, time complexity is big of k square also, because we are just creating the matrix, we are just creating a matrix, so big of k square space time complexity space complexity हो जाएगी। और ये कोड मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, बिकॉज बड़ा कोड है थोड़ा सा, तो वहां से देख सकते हो। सो दिस वाज द कोड, एंड इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। के लिए बाय।